Good morning, students. Welcome again to English class for class 11th. Today, we are going to start the fourth lesson in Hornbill. The name of the chapter is Landscape of the Soul, written by Nathalie Trovers Roy. So, here, before starting this chapter, we shall learn about the summary of the chapter. What is the content of the chapter, so that we shall understand the real matter of the chapter. So let's start. In this chapter, the writer contrasts two forms of art, Chinese art and European art, by using two different stories. In China, during the 8th century, the Tang Emperor Zhuangzong commissioned a painter Wu Daoji to decorate a wall in the palace. Upon seeing the wall painting, Emperor started noticing the outer appearance of the painting, but the painter drew his attention to a cave at the foot of the mountain. The painter told the emperor that he would take him inside. So here the lines are printed wrong. The painter entered the cave. Before entering the cave, the painter clapped, and while he clapped, the entrance of the cave opened, and the painter entered the cave. As soon as he entered the cave, the door closed behind him, and the painting vanished from the wall. In another story, a painter would not draw the eye of the dragon, not an eye, the eyes of the dragon, as he feared that the dragon would fly out of the painting in another story. To represent a European art form, a master blacksmith fall in love with a painter's daughter. The father didn't approve him because of his profession. The blacksmith sneaked into his painting studio and painted a fly on the painter's panel that he painted in latest. The fly seemed so real that the painter tried to hit it first before realizing it was in the painting. The painter accepted the blacksmith as a trainee in his studio. The blacksmith married the painter's daughter and later became one of the famous painters of his time. So, in this way, these are three stories. Two are from Chinese view of art, and one is from with the यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट. तो यहाँ पर तीन स्टोरीज हमने देखी. पहली क्या थी? चाइनीज स्टोरी थी. उसमें एक टैंग एम्पायर है जिनका नाम है जुआंग जोंग. वो वू दाओजी जो एक पेंटर है उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक पेंटिंग उनके वॉल को सजाने के लिए बनानी है. तो जुआंग जोंग एक पेंटिंग बनाते हैं. वो बिल्कुल लैंडस्केप है जिसमें माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ट्रीज, रिवर, ये सब चीज़ें पेंट की गई हैं. अब और वह पेंटिंग एक पैनल के पीछे बनी हुई है ताकि किंग के अलावा कोई उसको न देख पाए. तो जब वुड हाउस से रिक्वेस्ट की जाती है उस पेंटिंग को दिखाने के लिए, तो किंग को दिखाया जाता है पेंटिंग. तो राजा जब उस पेंटिंग को देखता है तो केवल आउटर पार्ट देखता है पेंटिंग का. और वुड हाउस जी तब उनसे कहते हैं कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. तब पेंटर वुड हाउस जी हाथ से क्लैपिंग ताली बजाते हैं. ताली बजाते ही जो केव होता है माउंटेन की फूट पर बना हुआ, वह उसका दरवाज़ा खुल जाता है और पेंटर यानी कि वुड हाउस जी उसके अंदर केव के अंदर एंटर करते हैं. जैसे एंटर करते हैं दरवाज़ा पीछे से बंद होता है और पेंटिंग भी दीवार से गायब हो जाती है. और यहाँ पर राजा बिल्कुल एस्टोनिश्ड, बिल्कुल सरप्राइज रहता है. और दूसरी जो स्टोरी है वह भी चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट को दिखाती है. चाइनीज़, तो इसमें क्या होता है, इस चाइनीज़ स्टोरी में पेंटर अपने ड्रैगन की आईज ही नहीं बनाता, आँखें ही नहीं बनाता, इस डर से कहीं वो ड्रैगन उड़ न जाए. बस इतनी इसमें कहानी है. थोड़ी सी देर की, ज़्यादा नहीं दिया है. और एक यूरोपियन आर्ट के बारे में बताता है जिसमें एक मास्टर ब्लैक स्मिथ है.
वह एक पेंटर्स की बेटी से प्यार करने लगता है, फॉल्स इन लव विद द पेंटर्स डॉटर, बट द फादर डिड नॉट एक्सेप्ट हिम एज हिज सन इन लॉ। उसके अपने दामाद नहीं बनाना चाहता बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन। सो वंस इट हैपन्स दैट द ब्लैक स्मिथ स्नीक्ड, यानी चोरी से घुस जाता है इन द पेंटिंग स्टूडियो ऑफ द पेंटर एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन द पेंटर्स लेटेस्ट पैनल। उसके लेटेस्ट पैनल पर एक फ्लाई मक्खी बना देता है। और मक्खी बिल्कुल रियल होती है, इतनी रियल लगती है कि जैसे पेंटर उस मक्खी को देखता है पेंट पर बनी हुई तो उसको मारने की कोशिश करता है। जब मारता मक्खी मरती नहीं तो वो रियलाइज करने लग जाता है कि यह क्या है, पेंटिंग में ही बनी हुई है। तो यह इतनी रियल उसने पेंटिंग, अब उसे पता चलता है जब यह कि किसने बनाई, यह फ्लाई जो है ब्लैक स्मिथ ने बनाई, तो उसे अपने एक ट्रेनी के रूप में अपनी स्टूडियो में जगह दे देता है। और बाद में उस ब्लैक स्मिथ की शादी हो जाती है पेंटर्स की डॉटर से, और फिर बाद में वही ब्लैक स्मिथ एक फेमस पेंटर बनता है अपने टाइम का। सो these stories revealed as to how art form is believed to be followed in two different regions in the world. In European, an artist wants the viewer to see a real viewpoint by borrowing his eyes, and the art must be perfect as must be illusion likeness. Whereas in China, the artist doesn't paint a real one but uses the inner and spiritual voice to create an abstract piece. The viewer can enter the painting from any point and can travel according to his own imagination. The artist wants the viewer to enter his mind and create a path of his own. So in this paragraph what the writer want to say, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि इस तरह से हमें डिफरेंस पता चलता है दोनों आर्ट का, दोनों यूरोपियन आर्ट का भी और चाइनीज आर्ट का भी। जो यूरोपियन आर्ट है उसमें पेंटर अपने व्यूवर को रियल व्यू पॉइंट देता है ताकि उसको देखने के लिए, उसकी पेंटिंग को देखने के लिए पेंटर की आंखों की ज़रूरत पड़े और उसे समझाना पड़े कि ऐसा ऐसा है। और जबकि आर्ट, और वहाँ पर वो एक बात कहता है कि पेंटर का मानना है, यूरोपियन पेंटर का मानना है कि आर्ट कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए और जिसमें इल्यूशंस भी हो, यानी कि भ्रम भी बना रहे हैं। जबकि चाइनीज आर्ट में केवल रियलिटी ही नहीं से होती है बल्कि इनर एंड स्पिरिचुअल वॉइस को भी क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, यानी कि उसको सोचना पड़ता है कि क्या बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, व्यूवर किसी भी व्यू पॉइंट से उसको देख सकता है अपनी इमेजिन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो आर्टिस्ट है, जो पेंटर है, वह चाहता है कि व्यूवर अपने फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट ना हो बल्कि अपना मेंटली भी वहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि उसको फिजिकल और मेंटली दोनों रूप से उस पेंटिंग को एनालिसिस करना पड़ता है। और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड शेंशुई, विच मीन्स माउंटेन वाटर। व्हेन दे आर यूज्ड टुगेदर दे मेक द वर्ल्ड लैंडस्केप। और इस कॉन्सेप्ट को शेंशुई कहा जाता है जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर, यानी कि पहाड़ का पानी, या फिर कह सकते हो फब्बारा वगैरह, वट एवर यू कैन से। और इसे जब पेंटर दोनों को एक साथ यूज करता है, यानी कि माउंटेन को वाटर यानी सेंचुरी कॉन्सेप्ट को जब यूज करता है तो वहाँ पर पेंटर एक लैंडस्केप बनाता है, एक सीनरी क्रिएट करता है। गेटिंग? So this is the summary of the chapter. The next part of this we shall make about the lesson. दूसरा पार्ट जो बनेगा वो इसका लेसन का बनेगा। In the lesson we shall understand the meaning of the paragraph of the chapter line by line. Okay? Have a nice day. Goodbye. See you.